آج ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت میں شامل پروگرام پرعزم پاکستان آج ٹی وی اور وفاقی وزارت اطلاعات کی مشترکہ کاوش سے ترتیب دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے عوام کو بچانے کے لیے جہاں حکومت اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، وہیں ہمارے معاشرے میں سے بہت سے کردار ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اس اندیکھے خطرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایسا خطرہ جس کا مکمل علاج کسی کے پاس نہیں۔ کرونا وائرس کی وبا سے بچانے والے کچھ ایسے ہیروز ہمارے ساتھ ہوں گے جو خود بھی اس کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ چاہے ہمارے ڈاکٹرز ہوں یا پیرامیڈیکل اسٹاف ہو یا نرسز ہوں یا وارڈ میں کام کرنے والا عملہ، صفائی پر مامور افراد ہوں یا پولیس اہلکار، امدادی رضاکار ہوں یا ایمبولینس ڈرائیور، کرونا وائرس کے حوالے سے ہم تک خبریں پہنچانے والے صحافی ہوں یا ٹی وی پروگرامز ترتیب دینے والے ہمارے جیسے میزبان، یہ وہ ہیروز ہیں جن کی وجہ سے ہم صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا فرحان آپ نے۔ آج کا پروگرام انہی ہیروز کے نام ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں مجھے، آپ کو اور ہمارے اہل خانہ کو بچانے کے لیے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان ہیروز کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف اور ان کی کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں اور ان کا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈس ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب۔ لاہور اسٹوڈیو میں محسن پاکستان عبدالستار ایدھی صاحب کے صاحبزادے جناب فیصل ایدھی صاحب موجود ہوں گے جو چند روز پہلے ہی کرونا کے اس مرض سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس خطرناک مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اور کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ثاقب کاکڑ صاحب جو کہ چند روز پہلے صحت یاب ہوئے اسی مرض سے۔ پروگرام کا آغاز ہم ایک عوامی سروے سے کریں گے جس میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا اور آپ کو اس کا درست جواب دینا ہے۔ آج کا سوال ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے درست حکومتی ہیلپ لائن نمبر یہ ہے 1133 1166 1188۔ درست آپشن کا نمبر 1 2 یا 3 لکھ کر 4473 پر SMS کریں۔ پرعزم پاکستان۔ جی میں بالکل سوال کو دہرا دیتی ہوں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے درست حکومتی ہیلپ لائن نمبر کیا ہے؟ 1133 1166 1188۔ درست انتخاب جو بھی نمبر وہ ہو، یا 3 لکھیے یا 2 یا 1، جس کو بھی آپ درست سمجھتے ہیں آپ اس کو SMS کر دیجئے 4473 پر۔ آپ آج ٹی وی کے ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے بھی اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مستند اعداد و شمار اور ہدایت کے لیے حکومت پاکستان کی ویب سائٹ covid.gov.pk کو وزٹ کریں اور اپنے اسمارٹ فون میں COVID-19 GOV کی اپلیکیشن کو انسٹال کیجئے۔ جی بالکل، ہم نے لوگوں کو انفارمیشن دے دی اور ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر باری خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ انڈس ہاسپٹل آپ کی پہچان اور آپ کا نام انڈس ہاسپٹل کی پہچان، میں بالکل آپ سے تفصیلاً گفتگو کرنا چاہوں گی، مگر اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ایدھی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب پہلے بتائیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میری طبیعت بالکل صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے، اور بالکل صحیح محسوس کر رہا ہوں۔ جی میں سلام پیش کرتی ہوں، میں کیا بلکہ پوری قوم سلام پیش کرتی ہے آپ کو اور آپ کے والد کے کیے ہوئے کام کو، جس طرح سے آپ دکھی انسانیت کی خدمت مسلسل کر رہے ہیں، اپنی ذات کو، اپنی ذات کے فوائد کو، اپنی ذات کے آرام کو ایک سائٹ پر رکھ کر اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ بہت فخر ہے، اور آپ جیسی شخصیات جو ہیں وہ ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل سکیں۔ فیصل صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور بتائیں کہ اس وقت جو مسائل درپیش ہیں، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی فاؤنڈیشن کیا کیا کام کر رہی ہے؟
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम लोगों का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी सेहतियाबी के लिए दुआएं की और इदारे की तरक्की के लिए दुआएं की और नेक नामी रखी। मैं उन सब का दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों की दुआओं से ही जो है मैं आज सेहतमंद होकर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हम जो काम कर रहे हैं वो है कि जो मरीज़ और मुतासिरीन हो जाते हैं कोरोना से, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उनको हम हॉस्पिटल्स ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए, या हम उनके घर जाते हैं DHOs के स्टाफ के साथ उनकी सैम्पलिंग लेने के लिए और उनके घर वालों की सैम्पलिंग लेने के लिए, ताकि जो है वो चेक किया जा सके कि किसको कोरोना लग चुका है नहीं लग चुका। इसी तरीके से ज़ख्मियों की भी शिफ्टिंग हम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी हम किसी किस्म का चार्ज नहीं कर रहे। पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम अजला में जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर कोई इससे मुतासिर हो के इंतकाल कर जाता है तो उसकी मैयत को किस तरीके से बाहिफाजत जो है वो गुस्ल करना, उनकी जो है वो गुस्ल व कफन करना, उनकी तदफीन करना, ये सारे जो है वो तरीक़ेकार भी हम अपना रहे हैं। और तकरीबन मेजॉरिटी 80 से 90% पूरे मुल्क में ये काम भी हमारे ही वर्कर्स पूरे मुल्क में अंजाम दे रहे हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम कोई चार्ज नहीं कर रहे लोगों से। और इसके अलावा हम काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की कि किस तरीके से आपको क्या करना है, क्योंकि अब तो कुछ शहरों के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर इनको सिम्टम्स वगैरह ज़ाहिर हो जाएं तो फिर हम उनको कहते हैं कि अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेट कर लें और किन किन चीज़ों की परहेज़ करें, क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, तो उससे भी जो है वो लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फैसल इदी साहब, फरहान अली वारिस अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि आप पहले तो अल्लाह का लाख आप सेहतयाब हो गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी कोई मरीज़ इसका कोरोना वायरस का शिकार होता है तो वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो 14-15 दिन गुजारे ये किस तरह से गुजारे, क्या आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की और क्या मामूल आपका रहा? क्योंकि देखिए आप जो काम करते हैं या ईदी साहब जो काम करते थे उसको देखकर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एनजीओ को हौसला मिला। तो हम चाहते हैं ये हौसला भी लोगों को मिले कि आप जब इसका शिकार हुए तो आप किस तरह से सर्वाइव करते रहे, क्या आप घबराए तो नहीं, और पेशेंट पे कैसे काबू पाया, और ख़ुराक क्या आपने इस्तेमाल की, मेडिसिन्स कौन सी ली, एहतियाती तदाबीर क्या की, आप घबराए तो नहीं, ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। अच्छा फरहान भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये सवाल मैं चाह भी रहा था कि इसके हवाले से बात की जाए, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो जब आपको सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 40-50% लोगों को सिम्टम्स ज़ाहिर भी नहीं होते हैं और ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म मतलब हो के सही भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो सिम्टम्स उस वक्त ज़ाहिर होना शुरू होते हैं जब ये इनके फेफड़ों पे अटैक करता है, इनके लंग्स पे अटैक करता है ये वायरस, और जब इसके लंग्स पे अटैक करता है इसको नमूनिया कहते हैं, और नमूनिया अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर आपकी जो है वो जान को भी ख़तरा हो जाता है। और अमूमन लोग जो मरते हैं वो इसी वजह से मरते हैं कि नमूनिया शिद्दत इख्तियार कर जाता है और उसकी वजह से फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट आता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे खून जिस्म को जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खाने पीने की और जो काम करने की, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। नमूनिया वैसे अमूमन अक्सर पेशेंट्स के अंदर नमूनिया डेवलप होता है। इसमें होता है खाने में कलुंजी जो है वो उसके 15-20 दाने आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाएँ, और इससे जो है वो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। एक लीमू का इस्तेमाल दिन में 1 या 2 करें, उससे भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। विटामिन सी की गोलियां आती हैं CSA कैल्शियम के नाम से, या कोई भी कैल्शियम की सप्लीमेंट आती हो वो आप इस्तेमाल करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कि कितना डोसेज आपको लेना चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी जो है उसमें मैं लौंग डाल के पीता था, ताकि जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो गले के अंदर आपकी जो सोजिश होती है, सूजन होती है, वो कम हो जाए, क्योंकि लौंग के अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपकी सूजन को जो है वो कम करती है। इसी तरह से हम भाप भी जो लेते हैं उसमें भी हम लौंग डाल देते थे 3-4-5, ताकि जो है वो जब आपके फेफड़ों में जाए तो वो इन्फ्लेमेशन की जो इसकी क्वालिटीज़ हैं उससे फ़ायदा हो और सूजन को कम करें। ठंडा ना खाएं और ठंडा पानी भी ना पिएं। जब तक आपको इस मर्ज़ में मुब्तला हैं आप ठंडे से बिल्कुल दूर रहें।
کیونکہ ٹھنڈا جو ہے وہ سوجن کو زیادہ کرتا ہے اور اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، خاص کر جب آپ کو نمونیا ہوا ہو۔ دوسرا آپ کو کرنا کیا ہے، سانس کی تکلیف ہو جائے تو آپ کو سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اگر ایسی خدا نخواستہ صورتحال ہے کہ آپ سے ڈاکٹر نہیں مل پا رہا، یا آپ ایسی رات کے 2 بجے یا رات کے وقت میں ہیں، آپ کو مشکل لگتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا، تو رات کے وقت مطلب کبھی بھی آپ الٹے سوئیں۔ اس سے جو ہے وہ پھیپھڑوں کے اوپر زور کم پڑتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف میں کمی آتی ہے۔ یہ علاج مطلب نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر ہیں۔ آپ کو جانا تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے، اور سانس کی تکلیف میں اگر بہت زیادہ وہ کر جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں رش کی وجہ سے جو ہے یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نہیں دے پا رہے یا ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور دوسرا، ورزش نہ کریں، کیونکہ ورزش سے جو ہے آپ کے پاس یہ اگر سمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں اس کے کرونا کے، کووڈ-19 کے، تو آپ ورزش بالکل نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں پہ جو ہے وہ سٹریس آتی ہے، آپ کی باڈی کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بالکل ریسٹ پہ چلے جانا چاہیے، اور بیڈ ریسٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ابھی ایک جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور نے کراچی کے اندر خودکشی کر لی، اس کے اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ کرونا وائرس پازیٹیو آیا۔ اس میں آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر آ بھی جاتا ہے اور آپ ایک کمرے میں بھی رہ رہے ہیں تو بھی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن کر سکتے ہیں، سیلف آئسولیٹ کر سکتے ہیں۔ صرف کمرے کے ایک کونے میں رہیں اور ماسک 24 گھنٹے لگا کے رکھیں، تاکہ جو ہے وہ ڈراپلیٹس آپ کے کمرے میں جو ہے وہ اسپرے نہ ہو۔ اور آپ کے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کریں کہ اسی کمرے میں جو غریب لوگ ہیں، ایک ہی کمرے میں 4-4 5-5 لوگ رہتے ہیں، تو ان سب کو بھی ہدایت کریں کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی ماسک لگا کے رکھیں، اور یہ صرف 15 دن آپ کو لگانا ہے۔ اور باتھ روم کا جب آپ استعمال کرتے ہیں ایک ہی کمرے کے اندر، تو باتھ روم کو استعمال کرنے کے بعد، جیسے میں مریض ہوں، میں نے باتھ روم کو استعمال کیا ہے، تو جہاں جہاں میرا ہاتھ لگ سکتا ہے، جیسے نلکا ہے، ہینڈل ہے، اس پہ یا تو بلیچ کا یا جو ہے وہ فینائل کا جو ہے وہ پوچا لگا دیں استعمال کرنے کے بعد، تاکہ جو ہے وہ ڈس انفیکٹ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ 80% مریضوں کے اندر یہ آ کے چلے بھی جاتا ہے، اور کچھ کو جو ہے وہ سمٹمز دیتا ہے، کچھ کو تو یہ سمٹمز بھی نہیں دیتا۔ اور 10-15 مریض ایسے ہوتے ہیں جو اس میں کرٹیکل ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل کی طرف جائیں، اور اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح صحت یاب رکھیں۔ تھینک یو جی کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں ثاقب کاکڑ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا لاکھ شکر۔ میں آپ کی طرف آؤں گی، مگر میں اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ سرکاری نوکری سے رفاہی ہسپتال تک کورنگی کراچی میں بیڈ کے جو کورنگی ہسپتال میں انڈس ہاسپٹل جس کا آغاز کیا تو 150 اس کے بیڈڈ تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سفر بڑھتے بڑھتے 1000 جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے اس میں تبدیل ہو گیا۔ کیا یہ سفر یہاں تک تھا، یا اس منصوبے کو پورے ملک میں بھی جو آپ پھیلا رہے ہیں، کیا واقعی آپ کے ہسپتال میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں؟ کیا واقعی مفت علاج کیا جاتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کو خود ہی جواب دیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ڈاؤ میڈیکل کالج سے شروع ہوا تھا، جہاں سول ہاسپٹل ایک اٹیچ ہاسپٹل جہاں پر مریض اور ڈاکٹر بستر اور ڈاکٹر ہوتا تھا، باقی دوائیاں مریضوں کو آؤٹ آف پاکٹ ہوتی تھی۔ تو ہر مریض ایک کہانی لے کے آتا تھا، کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا، کوئی بھینس بیچ کے آتا، کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، تو جو مریضوں کو دوائیں دیتی تھی۔ پھر 81 میں 82 میں ایک بلڈ بینک بنا۔ 1986 میں ایک پہلا بام بلاسٹ کراچی میں بوری بازار میں ہوا تھا، جس میں کافی لوگ مرے تھے اور کافی زخمی بھی ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکالا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو ٹریٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ایمرجنسی کو دوبارہ بناتے ہیں، اور جب نئی ایمرجنسی بنائی گئی تو 36 لاکھ روپے میں سے پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیے تھے، اور اس میں سے تقریباً 36 میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے تھے۔ 3 لاکھ روپے کوائنس کی صورت میں تھے، 5 پیسے 10 پیسے 8 آنے۔ ایک دن اناگریشن سے پہلے جب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا، فری آف کاسٹ ہوگا،
तो ख्वाब 1987 में देखा गया और शर्मिंदा ताबीर ये 2007 में हुआ 150 बेड से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बेड यहाँ पर हैं, उसके अलावा ये पूरे मुल्क में एक नेटवर्क की सूरत में आ गया है और तकरीबन 13 अस्पताल हैं और तकरीबन 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स चल रही हैं। पहले साल का बजट जब हम शुरू कर रहे थे लोग कहते थे ये शायद चल ना सके, किसी ने 1 माह दिया, किसी ने 6 माह और मैक्सिमम 1 साल में आप पैसे देना शुरू कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो चुके हैं, किसी एक मरीज़ को पैसे न होने की वजह से वापस नहीं भेजा गया। माशाअल्लाह। द कैश टोटली कैशलेस हॉस्पिटल, पेपरलेस हॉस्पिटल, कैशलेस टू एन एक्सटेंट, कोई काउंटर ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कि आप वहाँ पैसे दे सकें, आप किसी वक्त भी जाके देख सकते हैं। तो पहले साल का बजट हम यही कहते थे कि अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह कराएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 हॉस्पिटल और पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए, आज तकरीबन 18-20 अरब रुपए है और किसी एक मरीज़ को भी वापस नहीं भेजेगा पैसे ना होने की वजह से। जी बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे 2-3 साल पहले विज़िट करने का मौका मिला और गुज़िश्ता साल भी मैं जब गई तो ये हकीकत है कि वहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है और ये नहीं कि यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। यहाँ पर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, वो सफाई के हवाले से हो, वो पेशेंट की केयर के हवाले से हो, वो उनको दवाई देने के हवाले से हो, वो बच्चों का वार्ड हो, वो ख़वातीन का वार्ड हो, मतलब किसी चीज़ में भी आपको लगेगा कि जो हमें फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं वो तमाम की तमाम VIP फैसिलिटीज़ आपको इंडस हॉस्पिटल में मिलती हैं। तो ये तो जज़ाकल्लाह, बहुत फ़ख्र और ख़ुशी होती है डॉक्टर साहब कि आप जैसी सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। आई थिंक इसी हवाले से आपकी खिदमत को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है, मगर इससे बड़ा जो आपको अवार्ड मिल रहा है वो है आवाम की दुआएं, गरीबों की दुआएं, मुस्तकीन की, बीमारों की वो दिल से निकली हुई दुआएं। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो हालात हैं, तमाम डॉक्टर्स को मालूम है कि ये एक ऐसा वायरस है जिससे उनकी अपनी जान भी जा सकती है, मगर इसके बावजूद पूरी दिल के साथ, पूरे जज्बे के साथ वो तमाम मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके स्टाफ में से क्या किसी ने कोई ऐसी कमज़ोरी साबित करने की कोशिश की कि जो हम छुट्टी ले लेंगे और हम ऐसे किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे? नहीं, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है अपनी टीम के ऊपर कि जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ के और डे 1 से, क्योंकि 26 फरवरी को पहला मरीज़ आया था और 27 फरवरी से रादर जब चाइना में शुरू हुआ था तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। इमरजेंसी में हमने एक अलग यूनिट बना दिया था नेगेटिव प्रेशर के साथ, और हम अपने तमाम स्टाफ को ये कहा था कि आप मास्क और ग्लव्स के साथ मरीज़ देखेंगे, कि हमें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आएगा। और फरवरी के महीने में आया तो उसके बाद से जब लोगों को कहा है तो लोगों ने अपना नाम खुद लिखा है कि हम करेंगे, तो वो इतनी आगे बढ़ के था कि मुझे मतलब ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि ये किसी को कोई परेशानी नहीं थी। उसमें हमारे काफ़ी जो हेल्थ केयर वर्कर्स इफेक्ट भी हुए, लेकिन जिम्मेदारी थी उनकी, उनके अंदर हिम्मत थी और वो बस ठीक हो के दोबारा आ गए वापस, और दोबारा वापस उसी काम में लग गए हैं। और ये इंडस हॉस्पिटल ने फ्रंट लाइन पे आके हुकूमत के साथ मिलकर हमारी लैब पे काम हो रहा है, तकरीबन 800 टेस्ट रोज़ के हो रहे हैं। कोविड यूनिट 20 बेड का यूनिट है, वेंटिलेटर्स 15 हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह करे कि बस हम जो स्पेकुलेशन की भी है, जो मॉडलिंग हो रही है, जो समझते हैं कि इसका पीक मई के महीने में आएगा, और हम सब लोग अजीब नंबर्स पे बात कर रहे हैं कि ये 1 लाख हो जाएगा, लेकिन हम सब की दुआ ये है कि हमारी स्पेकुलेशन गलत हो, अल्लाह ताला उसको गलत साबित करे। आमीन। और हम इस रमज़ान के मुबारक महीने में हम लोग इस वबा से अल्लाह ताला हमको जान छुड़ाए। आमीन आमीन आमीन। साकिब काकड़ साहब, आपको मैं इन्वॉल्व करूंगी और आपसे बहुत सारे मुझे सवाल पूछने हैं, क्योंकि लोगों की मदद करने के दौरान आप खुद भी इस वायरस का शिकार हुए। मगर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले हम सुनेंगे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ये पैगाम। पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के हवाले से मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। एक तो ये कि काफ़ी दिनों से
सारा मीडिया आवाम को एजुकेट कर रहा है, 4-5 चीज़ों के हवाले से ज़रा सा जहन नशीन फिर कर लें। एक तो ये कि 20 सेकंड तक हाथ धोना और दिन में कई मरतबा धोना, हाथ को चेहरे को नहीं लगाना क्योंकि हाथ के ज़रिए, नाक और मुंह के ज़रिए ये वायरस बदन के अंदर जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना, ये चंद चीज़ें हैं ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का और दुनिया का रूटीन बन गया है और बना रहेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हीरोज़ हैं इनको हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान, हमारे सिक्योरिटी के लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तीसरी बात ये कि जो खैरात का जज्बा पाकिस्तान के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर का अपना फंड भी है और वैसे भी लोग जो डायरेक्टली लोगों के राशन के हवाले से, भूख और इफलास के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा जज्बा है, उसको आप जारी रखिए। चौथी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूम से परहेज किया जाए। मसाजिद के हवाले से हमने SOPs दिए थे, कल असेंबली के इजलास भी शुरू हो जाएंगे और हर चीज़ का मामला ऐसा है कि SOPs के साथ फासले, समाजी फासला, मास्क, एहतियात, इन चीज़ों के साथ सारे काम हो सकते हैं मगर हुजूम से गुरेज किया जाए। मैं इसके साथ साथ ये भी आपको कहना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा मौका है, कौम बन रही है, ये सेल्फ डिसिप्लिन की चीज़ें हैं, हर घर में इसका इम्प्लीमेंटेशन हर मस्जिद में, हर बाजार में नहीं है। तो लिहाजा मेरी अपील पाकिस्तान की अवाम के साथ है कि अगर अवाम तहिया कर लें कि डिसिप्लिन्ड कौम है, हम डिसिप्लिन के साथ चल सकते हैं, ये चीज़ें हम खुद हैंडल कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इस मुश्किल से भी निकलेगा, इसका मुकाबला भी कर लेगा और तरक्की याफ्ता कौमों के रास्ते के ऊपर बिल्कुल तैयार रहेगा। शुक्रिया। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। उसके अलावा हमने कोयटा में तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जिससे लगभग 3 से 4 हज़ार के लगभग लोगों को हम क्वारंटाइन कर सकें। हमारे साथ इस तरह का एक PCSIR सेंटर था, एक RDA कॉम्प्लेक्स था और एक एग्रीकल्चर कॉलेज का हॉस्टल था जिसको हमने क्वारंटाइन डिक्लेयर किया था। और इसमें जो भी हमारे पास गेस्ट वगैरह आ रहे थे ईरान से या पाकिस्तान से या वहाँ से जो खदशा था कोयटा को, हमने उनको वहीं पे सबसे पहले क्वारंटाइन किया, दस्तों में हमने ले आए इनको। और यहाँ पे हमने कोयटा से तकरीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे हमने जो क्वारंटाइन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे उनमें हम लोगों ने इनको रिहाइश दी। अच्छा, इन रिहाइश के साथ साथ हमने इनको तकरीबन हर वो फैसिलिटी दी जो फैसिलिटी इनको घरों में मुहैया होती थी। और हमने अपनी पूरी कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने और PDMA ने और आई मीन कंप्लीट गवर्नमेंट मशीनरी ने, कि हमने इन जो हमारे साथ मेहमान थे, जो हमारे गेस्ट थे, हमने इनको कंप्लीट कोऑपरेशन और कंप्लीट हमने इनको एक घर जैसा माहौल वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में मुहैया किया। अच्छा, इस दौरान ऐसा हुआ कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, PDMA और ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स वगैरह थे, इनका चूंकि इस वायरस के सामने या इस वबा के सामने चूंकि एक्सपोज बहुत ज़्यादा थे, तो खदशा भी हमें ज़्यादा हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग थे, जिसमें बशमूल मेरा, मैं चूँकि वहाँ का इंचार्ज भी था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल मैनेजमेंट जो उसकी थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। जितनी भी हमारे पास आइसोलेशन सेंटर्स थे या जितनी भी हमारे साथ क्वारंटाइन सेंटर थे, इनकी ओवरऑल मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। जी जी। तो हम चूंकि ज़्यादा एक्सपोज थे वहाँ पे इस वायरस के सामने, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी लोग इसमें इस वबा का शिकार हो गए, इस वायरस का शिकार हो गए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप ऐड कीजिएगा कि आप डेफिनेटली आपको पता होगा कि कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और आपने की भी, मगर उसके बावजूद आप इस वायरस का शिकार हुए, तो प्लीज़ इस हवाले से थोड़ा सा आप एलैबोरेट कीजिएगा अपने जवाब को कि एहतियात के बावजूद भी आप शिकार हुए, तो इसकी क्या वजह थी? अच्छा, पहले एहतियात तो जिस तरह की WHO या डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने प्रॉपर मास्क पहनना है और ग्लव्स पहनना है और हाथों को सैनिटाइज करना है, दिन में तकरीबन 20 से 25 दफ़ा अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। हम ये तकरीबन ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे थे। इवन हम N95 मास्क मैं खुद यूज़ कर रहा था, N95 मास्क, और दिन में मैं जब भी कोई में निकलता था या एक्टिविटी में होता था तो मैं ग्लव्स अमूमन पहनता था
और जब भी मैं ग्लव्स निकालता था उसके बाद मैं हाथों को तकरीबन ठीक ठाक सैनिटाइज भी करता था, सेफगार्ड से भी, सैनिटाइजर से भी। उसके बावजूद मैं इसको खुद से बचा ना सका। वो इसलिए कि ये इतना बिल्कुल अनसीन कोई वायरस है कि इसको ना कोई देख सकता है, ना कोई डिटेक्ट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। इससे सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप मैक्सिमम केयर करें। और ये अगर हमारा ये ख्याल है कि हमने मास्क पहना हुआ है और हमने ग्लव्स पहने हुए तो हम इससे बच सकते हैं। तो अगर इस तरह होता तो सबसे पहले मैं बचता, अगर इस तरह होता तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहिबान बचते जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज भी हैं और वो इवन किट्स, प्रॉपर किट्स पहन रहे हैं, प्रॉपर ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, फिर भी इसी वबा का शिकार हो रहे हैं। जो हमारे पास टीमें हैं, जो हमारे पास RRT टीमें हैं, वो तो बिल्कुल फुली किटेड होती हैं, उसमें भी पॉजिटिव केसेस आ जाते हैं। जब वो सिक्योर नहीं है तो आवाम कैसे सिक्योर हो सकती है? उससे हमें ये सबक मिलता है कि हमने एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए, एक्स्ट्रा विजिलेंट हमें इस वायरस में होना चाहिए। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात साकिब काकड़ साहब आपने की कि इतनी एहतियात के बावजूद भी हम में से किसी को नहीं मालूम कि ये वायरस कहाँ से किस तरह से हम पर अटैक कर सकता है। यही वजह है पुरअज़्म पाकिस्तान के हवाले से जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे हीरोज़ जो फ्रंट लाइन पर आकर इस वायरस से फ़ाइट कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी ज़ात का रिस्क लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करें बल्कि हम सब लोगों को भी बचाने की कोशिश करें। मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम सबको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से लोग ख़ुद भी अपनी हिफाजत कर रहे हैं और दूसरों की भी हिफाजत कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम तो हमारी स्क्रीन पर ही मौजूद है फैसल ईदी साहब, क्योंकि वो ख़ुद भी इससे सेहतयाब हुए और उसके बाद वो लोगों की खिदमत हमेशा की तरह कर रहे हैं। फैसल ईदी साहब अगर लाइन पे हैं तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। फैसल भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी बोलें, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी जी, अच्छा फैसल भाई ये बताइए, जैसे आपने अपनी इब्तदा में आपने फरमाया कि आपने जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और किस तरह से आप इस चीज़ से निकले, इस वबा से आप किस तरह महफूज रहे। आपके बहुत सारे रज़ाकार यकीनन इस हवाले से काम कर रहे हैं और मुमकिन है कि उनमें से भी शायद एक आध कोई मुतासिर भी हुआ और उसको आपने इसी तरह से गाइडलाइन दी और उन्होंने डॉक्टर से की हिदायत पर अमल भी किया हो। आपकी आवाम की जितनी खिदमात है और आवाम आपका साथ देती है, गाहे बगाहे देती है, लेकिन अब ज़ाहिर मामलात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते जा रहे हैं। फिर माशी मामलात आए, पहले सिर्फ कोरोना का मामला था, फिर माशी मामलात तक, अब ईद भी सामने आ गई है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में आप काम कर रहे होते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ये बताएं कि आप आवाम से मज़ीद और क्या ताउन चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाम हमेशा ताउन आपके साथ करती है, लेकिन मज़ीद इन हालात को देखते हुए जब डिफरेंट हालात चेंज होते जा रहे हैं, आप आवाम से मज़ीद क्या अपील करना चाहेंगे या क्या ताउन मज़ीद आप चाहते हैं ताकि आप मज़ीद बेहतर तरीके से और देखें? हाँ, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं आपको कि हमने एहतियाती तदाबीर बहुत अपनाई। मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता था और सोशल डिस्टेंस रखते थे। हम जो है वो कहीं पे भी जाते मास्क पहनते थे और कभी किसी मरीज़ को जो है वो शिफ्ट करते थे तो बाकायदा प्रॉपर गियर्स वगैरह पहनते थे। और मुझे जो लगा है या तो जो है मुझे लगा है ना वो लगा है किसी मरीज़ से नहीं लगा, मतलब किसी डिक्लेयर्ड मरीज़ से नहीं लगा। जो ब्लाइंड कैरियर होते हैं ना राशन की तकसीम में, या तो उनसे लगा है या मेरे दफ्तर में जो है वो काम करते हुए जो एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है कराची का, जहाँ पे मैं रोज़ाना ड्यूटी दे रहा था, ये मरीज़ों के लिए एम्बुलेंसेस भेजनी होती हैं, उसमें हमारे स्टाफ में भी 2-3 को पॉजिटिव आया और मेरे से 3-4 दिन पहले आया। तो एक ये शुबा है, या दूसरा जो है वो राशन की तकसीम के दौरान जो है वो पेन वगैरह का जो इस्तेमाल होता है गलती, इसमें कहीं गलती हुई है। दूसरा आपने कहा कि हम जो है वो इदारे के जो अखराजात हैं वो बिल्कुल यकीनन अवामी चंदे से चलाते हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम कोरोना की टोटल इमरजेंसी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, जो कि हमें बड़े पैमाने पर ख़र्चा दे रही है। और लोगों से अपील करता हूं कि वो हमारे मदद करें। और वैसे ही हमारा इस जो रमज़ान के जो 2 अशरे अब गुजरने वाले हैं उसमें हमारा चंदा काफ़ी कम हुआ है पिछले सालों से। और एक खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया को हम मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए हमने जो है वो चाइना को जो है वो मदद की ऑफ़र की हुई है, जो कि इंशाल्लाह हम लेंगे जैसे ही ये पैंडेमिक का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। हमने ईरान को मदद की, हमने इटली को मदद की है, हमने इंग्लैंड को भी मदद करेंगे, हम अमेरिका के भी जो है वो जो मतरासरा शहर है उनको मदद करेंगे। और ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है और हम ये अपने रिज़र्व फंड में से कर रहे हैं इसलिए। और वाहिद पाकिस्तान का इदारा है जो इस वक्त जो है वो दुनिया में किसी जगह भीख नहीं मांग रहा और लोगों की मदद कर रहा है। और
یہ صرف اور صرف پاکستانی ڈونرز جو ہیں ہمارے، ان کی بدولت ہم یہ کرنے کے قابل ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے گا، ہم پاکستان کا اور مزید سر بلند کریں گے اسی طریقے سے لوگوں کی، دنیا کے لوگوں کی خدمت کر کے. اس لیے ہماری جو ہے وہ آپ مدد کریں، ہمارا ساتھ دیں، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ لوگوں نے ہمیں چندہ دیا ہے. اس رمضان میں تھوڑا کم ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کا روزگار نہیں ہے، لوگوں کا کاروبار نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ ان سب تکالیف سے ہم سب کو نکالے گا، پوری دنیا کو انشاءاللہ نکالے گا. تھینک یو فیصل ایدھی صاحب. اور ہم اس بات کو محسوس بھی کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ نے ایک جگہ جانا بھی ہے، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پرعزم پاکستان کے اس پروگرام میں جو باران رحمت کے اندر یہ پروگرام ہے اس میں آپ شریک ہوئے، اور امید ہے کہ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ آپ سے اور خدمت لیتا رہے. اور میں تو بس یہ کہوں گا کہ جیسے آپ خدمت کرتے ہیں لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یقیناً آپ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس نیکی میں آپ کا وسیلہ بنے، یعنی جس کے گھر ہم راشن دینے جائیں، جس کا علاج کرائیں، ہم یقیناً اس کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تمہارے علاج کے لیے، تمہارے راشن کے لیے وسیلہ بنا دیا. فیصل ایدھی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی صاحب کو خدا اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. لاہی آمین آمین. جی پرعزم پاکستان میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں انڈس ہاسپٹل کے روح رواں ڈاکٹر باری صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر باری صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک جس جذبے کے تحت آپ اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت جو سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے بہت ایک ذہنی اذیت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، جہاں پر لوگوں کو اپنی زندگی، اپنی صحت کا احتیاط کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، وہاں پر معاشی حوالے سے بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. تو اس حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا ہاسپٹل جو ہے وہ کسی سے پیسے نہیں لیتا، جو بھی مریض آتے ہیں، تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے اس سچویشن میں جب کہ لوگ خود اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، تو کیا اسی طرح سے لوگ آپ کو فنڈز فراہم کر رہے ہیں؟ بالکل جی، آ رہے ہیں، گو کہ کمی ہے، لیکن کچھ اچھی ایسی انسٹانسز بھی آئی ہیں جس کو میں شیئر کروں گا لوگوں کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں اس وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں ابھی شروع ہوا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کا جو اپنی زندگی کے بارے میں فلسفہ چینج ہو گیا ہے. لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز جو آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمیت کو بتا دیا کہ میں یہ ایک چھوٹی سی چیز سے میں دنیا کو کیا کر سکتا ہوں. تو بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس جتنا جمع کچھ تھا، میں تو اب سمجھتا ہوں کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو یہی رہ جانا ہے، تو اس لیے اب آپ لے لیں اس کو، اور اس کو مریضوں کے لیے استعمال کریں. تو یہ ایک خوشائن چیز ہے. اور دیکھیں ہم تو یہ سب ہم تو کسی کے اوپر یقین کر کے نہیں کرتے، صرف ایک ذات پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر. بے شک. تو مریض ہیں، مریض دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ نکالنا ہے. معاشی حالات کیسے بھی ہوں، لیکن دنیا میں جو اکنامک میلٹ ہوا تھا، لوگوں کے حالات خراب ہوئے تھے، پاکستان میں بھی ہوا تھا، لیکن یہ ادارہ بڑھتا چلا گیا. تو یہ اس میں پاکستانی قوم ایک عجیب قوم ہے. دیکھیں ایسے عام حالات میں تو ہم یونائٹڈ نہیں ہوتے، لیکن جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہو، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010-11 کا سیلاب ہو، یہ قوم ایک ہوتی ہے اور جوک نکلتی ہے، اور جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ لٹا دیتی ہے لوگوں کے اوپر جو ضرورت مند ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ، اور اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اللہ بھی یہاں غیب سے چیزیں بھیج سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا رہے گا انشاءاللہ. بلکہ میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اور مجھے بتائیے گا کہ جو لوگ اگر آپ کی مدد کرنا چاہیں، اس وقت بھی کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے، تو وہ کس طرح سے اپنے فنڈز جو ہیں وہ انڈس ہاسپٹل پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو ہم نے بہت آسانیاں کر دی ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نکلیں. ایک آن لائن ہماری ویب سائٹ ہے www.indushospital.org.pk. اس میں تمام طریقے لکھے ہوئے ہیں. ٹیلیفون ہمارے کال سینٹرز ہیں، آپ فون کریں، ہمارے لوگ آ کے گھر سے بھی لے جائیں گے. ڈائریکٹ آپ بینک میں دے دیں اپنے اس کے ڈائریکٹ اس کے طریقے سے. اور بھی طریقہ کار ہیں، آپ TCS کر دیں تو، اور ہمارا رائڈر بھی جا کے لے سکتا ہے. تو اس لیے آسانی ہے. ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں. ہم کسی طریقے سے ایک احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہمارے لوگ آ کے آپ سے لے جائیں گے انشاءاللہ. جی اچھا ڈاکٹر بھائی صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہیں اس متاثرہ حضرات کے، تو بہت زیادہ آپ کلوزلی اس کو دیکھتے بھی ہیں. تو یہ بتائیے کیسے ہمیں ایکچوئل پتہ چلتا ہے؟ مثال کے طور پر 12,000
لوگ جو ہیں وہ اعداد و شمار میں آتے ہیں اور اس کے بعد 3000 ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر 3000 دوبارہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں فگر, یہ 3000 کو مائنس کر کے بتاتے ہیں یا ان کو ساتھ رکھ کے کہ پرانے جو تھے وہ الگ تھے, مزید 3 آ گئے, یعنی اس میں سے جیسے اکاؤنٹس میں ہوتا ہے کہ یہ حصہ کلیئر ہو گیا, اتنے لوگ نکل گئے, اتنے لوگ دوبارہ آ گئے. تو یہ اس پہ ذرا روشنی فرمائیے گا. ٹوٹل جو ہے نا دیکھیں ہمارا نمبر ہوتا ہے کہ اتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ 3000 یا 4000 جو ہے نا وہ اب ریکور ہو گئے ہیں, لیکن ٹوٹل اسی طرح بڑھتا رہتا ہے. تو اس میں سے مائنس نہیں ہوتا کہ ٹوٹل بڑھتا ہے, لیکن 4000 اس میں سے سپوز آج کوئی میرے خیال میں ہم 27-28 ہزار پہ پہنچ گئے ہیں, تو اس میں سے 6-7 ہزار ریکور ہو چکے ہیں, تو وہ ریکوری میں آ جاتے ہیں. لیکن آپ اس اعداد و شمار میں ان کا نمبر جو نمبر رہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا لاک ڈاؤن کا بھی افیکٹ تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارا کرو جو ہے نا ایک دم اسٹیپ نہیں ہوا ہے, یہ سلولی چل رہا ہے. دوسری ایک خاص بات جو نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں سیویرٹی ویسی نہیں ہے جیسے نارتھ امریکہ میں یا یورپ میں تھا. تو وہ اب اس کی کیا وجہ ہے, اس کے اوپر بڑی اسپیکولیشنز ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ جو ہے نا ہماری ینگ پاپولیشن, یہ ہماری پاپولیشن میجورٹی ینگر پاپولیشن ہے, اس وجہ سے, اور جو بھی اموات ہوئی ہیں اس میں میجورٹی جو ہے نا 50 سال سے اوپر والی ہوئی ہے, تو ینگر پاپولیشن ہونے کا ہم کو بینیفٹ ملا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ثاقب کاکڑ صاحب سے آپ کوئی سوال ایک بریک میں آپ کہہ رہی تھی وہ پوچھنا ہے لازم. بالکل میں ثاقب کاکڑ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہیلپ لائن پر جو کالز آتی ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ, اور اس وبا پر قابو پانے کے لیے عوام, طبی عملے اور حکومتی عملے کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ کچھ گھبرا بھی گئے ہیں. جو لوگ, سوری میں بہت معذرت سے, کیونکہ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس وائرس سے, مگر سننے میں جو آئے کچھ کیسز میں کہ جس طرح سے لوگوں کو لے کر جایا جا رہا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں تھوڑا خائف بھی ہو گئے اس بیماری کے حوالے سے بتانے کے لیے. تو آپ پلیز یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو ایک کمفرٹیبل زون جو ہے مہیا کیا جائے تاکہ لوگ ڈریں مت, گھبرائیں مت, کیونکہ ایک تو بیماری سے گھبرائے ہوئے, اوپر سے اگر حکومتی سطح پر جو لوگ لے کر جا رہے ہیں کوارنٹین کے لیے ان کا تھوڑا سخت رویہ ہو, تو یہ تو سونے پر سہاگا والی بات ہوگی کہ اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. تو پلیز اس حوالے سے تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں اور لوگوں کو ذرا گائیڈ کیجیے. جی بالکل. اچھا میڈم, پہلے تو یہ کہ جو آپ کا 1166 یا 1122 کا جو کویسچن ہے اس کو تھوڑا سا میں اینڈ پہ رکھوں گا. آپ کا پہلا جو کویسچن تھا وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, اس کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبے کے لیے بھی, کوئٹہ کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی, کہ کوئٹہ کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے, پریونٹیو میئر کیا لے رہی ہے, یہ دوسرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو کلیریفائی کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے جو بڑا لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرایا پاکستان میں, دیٹ واز ڈسٹرکٹ کوئٹہ. ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں سب سے پہلے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ سٹارٹ کیا, چونکہ ایران سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ تھا, یہ ایران کا جو پورس بارڈر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ تھا, تو ہم نے اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کروایا. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے پریونٹیو میئر بھی لیا ہے, ہم نے کوشش کیا کہ جو شاپس کھلی ہیں اور جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ہم نے ان میں ماسک وغیرہ بھی تقسیم کی, فری ہم نے گلوز وغیرہ, سینیٹائزر وغیرہ بھی ان میں تقسیم کیے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے جو بھی سوسائٹی میں ہمیں سسپیکٹس ملے, جو RRT کے ٹیموں کے ذریعے ہم نے وہاں سے پک کیے اور ان کو ہم لوگوں نے کوارنٹائن سینٹر منتقل کیا, جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ بہت سارے ان جو سسپیکٹس تھے ان میں پازیٹیو کیسز ہمارے ساتھ نکلے, جو ہم نے ٹائملی ہم نے سوسائٹی سے پک کیے تھے, اور اس پک کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ انفرنج نہیں ہوا تھا یہ جو پازیٹیو کیسز تھے. خدا نخواستہ اگر ہم وہ ایکٹیویٹی اس دوران نہ کرتے تو یہ پورے کوئٹہ کو بہت ہی پہلے یہ پکڑ چکا ہوتا اپنی گرفت میں. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے آئسولیشن سینٹر بھی یہاں پہ اسٹیبلش کیے ہیں اور ہمارے پاس ہاسپٹلز بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے جو آگاہی کا مہم ہے والنٹیئرز کے تھرو وہ بھی ہم نے تقریباً گھر ٹو گھر, ہوم ٹو ہوم ہم نے وہ امپلیمنٹ بھی کرایا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ابھی بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن, ابھی ریسنٹلی ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کرایا, جس میں ہم نے ایک اسپیسیفک ٹائمنگ دی, جتنے بھی شاپس وغیرہ ہیں لوگ جا کے اس اسپیسیفک ٹائمنگ میں اپنی شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے لوگوں سے بھی کہ بھلے یہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے,
इसमें भी कोशिश करें, अगर किसी का ज़रूरी काम है, अगर वो इनएविटेबल है, तो बेशक वो उस टाइम उस दौरान बाज़ार जा सकते हैं, अपनी शॉपिंग या अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। अदरवाइज़ खुदारा आप लोग अपने घरों पे बैठ जाइए। अभी भी हम लोग इस नासूर से, इस वबा से हम लोग बचे नहीं हैं। जितना भी हम बाहर की तरफ निकलेंगे, जितना भी हम लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, जितना ही हम लोग सोशल डिस्टेंसेस को कम करेंगे, उतना ही इस वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे कोयटा के अवाम से, बलूचिस्तान के अवाम से और बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये गुजारिश है कि कोशिश करें कि अपने घरों पे रहें, सोशल डिस्टेंसेस को वो करें और एहतियाती तदाबीर जो जो आपको WHO और गवर्नमेंट बताती है उसको अपनाते रहें। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके एक और क्वेश्चन जी आपने किया था कि जो हेल्पलाइन का सिस्टम है, हेल्पलाइन का सिस्टम हम लोगों का ऐसा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, दैट इज़ बेसिकली 1166, बट हमने इसी की कंटिन्यूएशन में 1122 जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है, उसको एक नया नंबर नहीं है, इसीलिए उसी को कंटिन्यू रखा है। और इस पर हमने ये किया है कि हमने एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक हेल्पलाइन जो है वहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस लाइन लगाया है जिसमें हमारे पास फैसिलिटेटर मौजूद होते हैं। लोग क्या करते हैं कि जिसको भी खदशा होता है वो हेल्पलाइन को कॉल करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो हमारे साथ फैसिलिटेटर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ हमने जो डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं उन्हीं डॉक्टर से उस इंडिविजुअल्स की कॉल डायरेक्ट मिलाते हैं। वो डॉक्टर्स फिर उनसे फ़ोन पे स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, उनसे जो जो सिम्टम्स वगैरह है वो पूछते हैं। जब भी खदशा होता है डॉक्टर को कि आया इनको किसी टेस्ट की ज़रूरत है या किसी RRT टीम की ज़रूरत है, तो वो फ़ौरन हम क्या करते हैं कि हमारे पास 16 एक RRT टीम है और 8 हमारे पास स्टेटिक टीमें हैं। डॉक्टर कंसर्न जो कि हमारे जोन्स हैं उसी जोन के RRT टीम को उसी कंसर्न एरिया में भिजवा देता है और वहाँ पे उसकी टेस्ट वगैरह कर देते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बहुत कादर शुक्रिया। साहब। हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा नाज़रीन, लेकिन वक्फे में जाने से पहले मुआविन खुसूसी वज़ीर पाकिस्तान बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का पैगाम ज़रूर सुनिए। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अज़म पाकिस्तान। कोरोना वायरस चूँकि एक मुतद्दी मर्ज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ये हमारे बस में है कि अगर हम उन हदायत पे अमल करें तो इसकी फैलाव को रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी मेल जोल में जो कमी है वो इसका ज़बरदस्त तरीका है इसके फैलाव को रोकने के लिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपनी हिफाजत करें, यानी अपने आप को हजूम से अलहदा रखें, तो आप न सिर्फ अपनी बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत भी कर सकते हैं और इस बीमारी के फैलाव को रोकने का मूजब बन सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। शामिल हैं, ये सब जो है इसका शिकार हो चुके हैं। शहजाद साहब की थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अगर मुमकिन हो सके तो। जी, बट अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत दे। मगर ये बताइए कि अब सब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, हम पहले से बेहतर हैं। बुखार वगैरह जो है हमारा तो तकरीबन टूटता जा रहा है, कभी बुखार होता है कभी नहीं होता, तो इसी सूरत हाल से दो चाह रहे हैं। सांस का जो मसला है, बहुत टाइम खांसी छिल जाती है तो वो होता रहता है। बाकी बच्चे जो है उनका माशाल्लाह से इम्यून सिस्टम अच्छा है। मेरी बेटी का जिस्म कुछ दर्द करता है, वो शिकायत करती है। छोटी बच्ची है लेकिन यह है कि उनको टॉनिक वगैरह और उनकी खुराक को जो है हम बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं ताकि उनको कमजोरी फील ना हो या ये वायरस जो है उनको ज़्यादा तकलीफ ना दे। इसलिए उन बच्चों का बहुत ख्याल रख रहे हैं। जो ख़वातीन हैं उनमें हम थोड़ी सी शिकायत है, सांस की तकलीफ है, मेरी भाभी को है और मेरी वाइफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी जो है अल्लाह का शुक्र है, हम सब ठीक जा रहे हैं। मेरा बुखार जो है गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी भी जो बुखार है तकरीबन 100 तक बुखार है मुझे। उसी सूरत हाल से आगे पीछे जा रहे हैं। चलिए, अल्लाह मैं आप सबको अपनी रहमत में रखे और जल्दी से आप इस तकलीफ से सब लोग बाहैसियत सहाफ़ी में आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपकी प्रोफेशनल जो जिम्मेदारी है वो ये है कि कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो आवाम तक सही खबर पहुँचाई जाए। मगर आप ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो लोगों तक आप ख़बरें पहुँचा रहे हैं वो सिर्फ अदाद शुमार की हैं या उनसे बचाव की हवाले से आगही भी आप उनको दे रहे हैं?
क्योंकि एक आम देखिए, आदमी जो अपने घर पर आदाद रहकर शुमार- कैसे इस बीमारी का मुकाबला कर सकता है? देखें, आदाद शुमार तो हमें जो हुकूमत की जानिब से बताए जाते हैं कि आज इतने लोग शिकार हो गए, इतने लोग शिकार हो गए, वो तो हम दे देते हैं, लेकिन इस हवाले से जो आगाही है वो हम लाजमी समझते हैं कि तमाम लोगों को इस चीज़ के हवाले से आगाह करें कि जो हमारा अनदेखा दुश्मन है, हम पर हर किसी न किसी तरफ से हम पे वार कर सकता है। तो उसका शिकार मैं खुद भी हुआ, हमें चीज़ का पता लगा कि इंतहाई मुश्किल बीमारी है, क्योंकि ना कोई आपके पास आ सकता है, ना कोई आपसे मिल सकता है, और डॉक्टर ही जो हैं वो हमें डील करते हैं। हम डॉक्टरों के पास गए, हमने अपने टेस्ट करवाए, उन्होंने हमें दवाइयाँ लिख के दी, तो हमें मशवरा दिया कि आप घर पर ही आइसोलेट हो जाएँ। हम आइसोलेट हुए। इस चीज़ में जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये बहुत लाजमी है, क्योंकि हम फासला रखेंगे तो ये बीमारी जो है मुंतकिल नहीं होगी। हमने यही एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की, तो मेरे घर के 15 लोग जो हैं वो इसका शिकार हो गए मेरे साथ। मेरे बाद जो है मेरा दूसरा भाई जो कि पेशे के लिहाज से साथी है, मेरे मेडिकल का स्टूडेंट एक भाई है, वकार शेबाब उसका नाम है, वो भी इससे मुतासिर हुआ। मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं, वो भी जो कि हम मेरा भी इलाज करते थे और वो भी इस चीज़ का शिकार हुए थे। इसके साथ साथ हमारे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी भाभियाँ ये भी इसका शिकार हुए हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इसमें जो है एहतियात है। एहतियात करेंगे तो हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे, एहतियात नहीं होगा तो हम इस बीमारी से बिल्कुल नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि ये जितना जोर देता है, जितनी कि ये तकलीफ देता है, ये बीमारी होने वाले को ही पता है। लोग जो है इसको बिल्कुल मजाक बना रहे हैं। बाजारों में हम देखते हैं कि रश होती है खरीदारी के वक्त, जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर भी रश होती है, लेकिन ये रश नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस वायरस का कुछ पता नहीं लगता कि ये किस वक्त कहाँ पर मौजूद होगा और किसको जो है अपना शिकार बनाएगा। अपना शिकार बनाने के बाद ये इंसान को बहुत दूर ले जाता है, क्योंकि अपने भी दूर हो जाते हैं, बच्चों से दूर, घर वालों से दूर, सबसे दूर एक अलग थलग पड़ा रहना और इस बीमारी के साथ लड़ना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मेरा तो यही मशवरा होगा आवाम को, लोगों को, कि जिस हम पहले भी आगाही देते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, आसिफ शहजाद साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे शुरू में जिक्र किया कि जो है वो इसका मुतासिर हुआ आपकी फैमिली के, ठीक है, तो 15 लोग जो है, यानी आपको जॉइंट फैमिली है, एक ही घर में वो 15 लोग रहते हैं या अलग अलग घर में, यानी आप रिश्तेदारों से मिल रहे हैं? और अगर वो एक साथ अलग अलग मिल रहे हैं तो समझ में आता है कि अपने अपने घरों में आइसोलेशन है, लेकिन अगर वो आपका सपोज दैट कि जॉइंट फैमिली है, तो वो फिर किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है आइसोलेशन? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो है जॉइंट फैमिली कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा भी जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हम 5 भाई हैं जिसमें 3 शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं हमारे। 5 मतलब का एक घर है जिसमें हम रह रहे हैं, 5 कमरे हैं जिसमें एक कमरा जो हम बैठक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मेहमानों के आने जाने के लिए। बाकी जो हम 3 भाई शादीशुदा हैं उनके पास, एक वालदा के पास, उनके साथ 2 भाई जो रहते हैं। ये हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। हमारा खाना पीना जो एक ही दफा खान पर होता था, सब जो एक ही घर में। जब मुझ में इस वायरस का तस्दीक हुई, मेरे छोटे भाई में हुई, तो उसके बाद हमने जब दीगर घर वालों के टेस्ट वक्तन फौकन कराते रहे तो उनमें भी तस्दीक होती रही। तो हम कुछ अपने कमरों में, कुछ हम छत पर अलग अलग जो हैं, हम यहाँ पर अलग अलग होते रहे और अपने आप को आइसोलेट करते रहे। लेकिन अभी हमारे घर में उतनी जगह नहीं है। अभी मेरी छोटी बेटी है, उसको जो है उसका ये मसला बना हुआ है, तो वो भी इसी का शिकार होकर तो वालदा के साथ ही रहती है, क्योंकि 4 साल की है, वालदा के बगैर वो रह नहीं सकती। इसके साथ साथ जो मेरी भतीजी है वो 3 साल की अपनी वालदा के साथ रहती है। इसके साथ उसके मजीद 2 बहनें हैं, वो भी इसी का शिकार हुए हैं, जिनकी उम्र 8 साल और 10 साल के करीब हैं। तो इतनी स्पेस हमारे घर में नहीं है कि हम अलग अलग एक एक कमरे में रह सकें, लेकिन ये हमने इतना मेंटेन किया है। जो बच्चे अपने वालदा के साथ रहते हैं, जो मर्द हजरात हैं, हम कुछ जो हैं छत पर हमारा जो एक अलग सिस्टम है, हम वहाँ पर रह रहे हैं, जबकि छोटा भाई जो है स्टोर है वहाँ पे उन्हें सेटिंग करके रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, वालदा हमारी जो है इस वायरस का शिकार नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई जो है वो उससे बच चुका है। ये 2 बंदे जो हैं हम बच चुके हैं, दोनों को अलग कमरे में हमने रखा हुआ है। उनको कहा हुआ है कि किसी सूरत हमारे साथ ना मिले, क्योंकि वालदा जो है हमारी एजेड हैं, तो अल्लाह से हम यही दुआ को हैं कि अल्लाह उनको बचाए और उनको ना हो, क्योंकि एजेड बंदे को ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है और बहुत मुश्किल बीमारी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया।
तो हम यही दुआ गो हैं कि एजेड लोग हैं इससे बचते रहे। मेरी वालदा समेत और एक भाई जो है मेरा इससे बचा हुआ है। इंशाल्लाह। बाकी हमने तरतीब इसी तरह भी बनाई हुई है कि जो छोटे बच्चे हैं अपनी वालदा के साथ रह रहे हैं और हम लोग जो है अलग अलग इसी घर में रह रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ ज़ैदा साहब, वाकई आप हमारी कौम के हीरो हैं और आपसे सवाल करने का मकसद सिर्फ इसलिए था ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जैसे आपने मुमकिन बनाया आइसोलेशन को किस तरह बेहतर बनाए, बहुत सारे लोगों ने यकीनन सबक हासिल जी किया। बिल्कुल फरहान, मैं बताती चलूँ कि सिविल हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन किया डॉक्टर निदा ने, जो वहाँ पर आइसोलेट डिपार्टमेंट के अंदर काम करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी हमारी हीरो हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहिबा के पहले तो ये बताइए कि वो कौन सा जज्बा कि जिसमें पता है कि ये एक बहुत ही लीथल वायरस है जो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, मगर इसके बावजूद आप लोग अपनी जानों को रिस्क पर डालकर ऐसे तमाम पेशेंट्स को डील करती हैं, ट्रीट करती हैं, आप और आपका सारा स्टाफ। तो पहले तो उस जज्बे के बारे में बताइए, क्योंकि जिस जगह जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रही हैं वहाँ पर इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज़ बताइए, शेयर कीजिए आप अपनी फीलिंग्स को। जी, मैं सिविल हॉस्पिटल आइसोलेशन, मेन आइसोलेशन में ही काम कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो सारे एडमिट हैं। जहाँ तक जज्बे की बात है, मुझे लगता है कि ये जज्बा तो अल्लाह ताला डालता है। और दूसरा ये कि हमारी एक ओथ होती है, आपको पता है, हिपोक्रेटिक ओथ जिसको कहते हैं, हम हल्फ उठाते हैं डॉक्टर बनते वक्त कि मरीज जब हो तो उसको अपने से पहले हम मरीज को देखें। जी बिल्कुल। तो वो जज्बा है अंदर, और जाहिर है सब हमें अल्लाह ने इतना हमने सीखा, पढ़ा, लिखा, तो अब किस काम का, इसी काम का कि हम अपने मुल्क को सर्व करें। अच्छा डॉक्टर निदा, मुझे बताएं, किसी लम्हे शैतान दिमाग में और आप कहा हो कि बस तुमने ये काम नहीं करना, या छुट्टी ले लो या बहाना लगा लो, कभी किसी लम्हे ये सोच आई आपके जहन में? सोच इसलिए आई, कभी कभी आती है, अपनी फैमिली को देख के डर लगता है कि हम वायरस घर ना ले आए। ऐसा ना हो कि हम हॉस्पिटल से वायरस हम अपने साथ घर ले आए और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसफर हो जाए। तो सबसे बड़ा डर ये रहता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं, आप ये बताएं कि आप इतने पेशेंट्स को भी डील कर रही हैं, आप तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ये बीमारी जो है, ये वायरस जो है, ये कितना लीथल है इस हवाले से, और लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, कैसे बचना चाहिए? मैं बस लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये बीमारी, ये वायरस बिल्कुल रियल है, लीथल है, और इससे एहतियात करना ज़रूरी है। आपको अपने पास अगर आपका ग्लव्स नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है घर में, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक आम साबुन, कोई ब्रांडेड साबुन नहीं, कोई आम साबुन आपके घर में, आप उससे हाथ धोएं, लेकिन आप अपनी सेफ्टी खुद करें। छोटे छोटे स्टेप्स लें इस तरफ। सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, वो मेंटेन करें। एक दूसरे से 3 फीट का फासला रखें और फिर बात करें। ये छोटी छोटी चीजें हम करेंगे तो हम अपने कौम को इस वायरस से बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा आपका, आप हमारी हीरो हैं और बहुत सारी गुड विशेज़ आपके लिए। किसी जज्बे से आप इंसानियत की खिदमत करती रहें। और आसिफ शहजाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके और आपके तमाम अहले खाना के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला पुरअज़्म पाकिस्तान का भी जारी है।